فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد 8142877400۔ حیدرآباد کے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر واقع مشہور الفا ہوٹل کو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے عملے نے مہر بند کر دیا ہے۔ 2 دن قبل رات کا بچا ہوا کھانا سربراہ کرنے کی ایک شخص نے شکایت کی تھی۔ سوشل میڈیا پر اس سلسلے میں ایک شخص کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں کہا گیا کہ وہ آج صبح سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع الفا ہوٹل میں 5 دوستوں کے ساتھ کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے قیمہ اور روٹی کا آرڈر دیا۔ کھانا لایا گیا، جیسے ہی انہوں نے ایک نوالا منہ میں ڈالا انہیں قے ہو گئی۔ قیمے میں سے بدبو آ رہی تھی۔ اس شخص نے اپنے ساتھیوں کو کھانے سے روک دیا اور متعلقہ پولیس سے شکایت کی۔ اسٹیٹ کنزیومر فورم کے ذمہ داروں نے بتایا ہے کہ جمال الدین نامی شخص اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹل کے کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہیں جو قیمہ سربراہ کیا گیا وہ کل کا بچا ہوا تھا، جس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے کارروائی کی شکایت کی تھی، جس پر GHMC کے فوڈ انسپیکٹر نے ہوٹل کے نمونے حاصل کرتے ہوئے اسے ناچارم کے لیب کو جانچ کے لیے بھیج دیا ہے اور ہوٹل کو مہر بند کر دیا گیا۔ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے حیدرآباد کے مضافات میں واقع تکو گڑا میں پارٹی کے جلسے عام سے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں BJP اور TRS پر جم کر تنقید کی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جب کبھی BJP کو ضرورت پڑی TRS نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے کسان بل کا معاملہ ہو یا پھر نائب صدر جمہوریہ ہند کا انتخاب، TRS نے ہمیشہ BJP کی مدد کی ہے۔ یہ سب آپ سے پیسے لوٹنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ మీ పైసలు మీ ఆస్తులు దోపిడీ చేయడానికి ఇవి వివిధ రకాల పథకాలని చెప్పి పనిచేస్తున్నాను। इसी लिए हम आपको आपका पैसा वापस देना चाहते हैं। అందుకోసమే మా ప్రభుత్వం రాబోతున్నది, మీ పైసలు మీకు వాపసు ఇవ్వబోతున్నాము। और ये जो हमने कहा है, आप कर्नाटक में चले जाइए, आपके पास में है, यहाँ पे आप जाइए, कर्नाटक में जाइए और वहां किसी से भी पूछ लीजिए, महिलाओं से पूछिए, किसानों से पूछिए, उनसे पूछिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया था वो करके दिखाया। పక్కనే ఉన్న కర్ణాటకకు పోయి అడగండి, రైతులను అడగండి, మహిళలను అడగండి, ఎవరిని అడగండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిన మాట నిలబెట్టిందో లేదో। అందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిన మాట నిలబెట్టింది అని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తారు। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 17 सितंबर को यौम तेलंगाना कौमी यकजहती के मौके पर बाद नमाज जोहर हैदराबाद के दरगाह यूसुफैन नामपल्ली चौराहा से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद इस रैली की क़यादत की। इस रैली में मजलिसी अरकान असेंबली व काउंसिल और कॉरपोरेटर्स के अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तिरंगा रैली नामपल्ली चौराहा, बाजार घाट, विजयनगर कॉलोनी चौराहा से ईदगाह बिलाली, हॉकी ग्राउंड, मासब टैंक पहुंचकर जलसे आम में तब्दील हो गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस यौम कौमी यकजहती के मौके पर तिरंगा लहराया और जलसे आम से खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर मजलिसी अरकान मुखन्नना सैयद अहमद पाशा खादरी, मोतमद उमूमी मजलिस मुमताज अहमद खान, मोहम्मद मौजम खान, अहमद बिन बलाला, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोयुद्दीन, मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, मिर्जा रहमत बेग खादरी के अलावा मीर जुल्फिकार अली, मोहम्मद माजिद हुसैन, साबिक मेयर्स और दीगर मौजूद थे। काबिल अज़ीज़ तमाम अरकान असेंबली व काउंसिल, कॉरपोरेटर्स और मुहिब्बान मजलिस के हमरा अपने हलकों और इलाकों से ज़ेली तिरंगा रैलियों के जरिए दरगाह यूसुफैन नामपल्ली पहुंचे। नामपल्ली चौराहा से तमाम ज़ेली जुलूस मरकजी जुलूस में शामिल हो गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह ने वजीर दाखिला अमित शाह को तनकीद का निशाना बनाया और उन पर इल्जाम लगाया कि वो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की तरह झूठ बोल रहे हैं। ये रिमार्क्स उस वक्त सामने आए जब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हैदराबाद पुलिस एक्शन उस वक्त के वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खून का एक खतरा बहाए बगैर डिजाइन और नाफिज किया था। ओवैसी ने सुंदरलाल रिपोर्ट का हवाला दिया। बाइक रैली निकालने के बाद कौमी यकजहती दिन की तकरीबात के दौरान खिताब करते हुए ओवैसी ने हैदराबाद रियासत के यूनियन ऑफ
ऑफ इंडिया में इंजमाम के दौरान होने वाले मजालिम और जानों के ज़या पर सुंदरलाल रिपोर्ट का हवाला दिया। अमित शाह ने अपनी तकरीर में इसी तरह झूठ बोला जिस तरह उन्होंने 18 सितंबर 1948 को ऑल इंडिया रेडियो पर बोला था। सुंदरलाल की रिपोर्ट साबित करती है कि अमित शाह और नेहरू के बयानात झूठ के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को आसानी के साथ और खून रेजी के बगैर जम किया जा सकता था, लेकिन उस वक्त के हुक्मरानों के गलत फैसलों की वजह से बहुत से लोग मारे गए। ये हमारा अंदाजा नहीं है बल्कि काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुंदरलाल रिपोर्ट में बताया गया है कि 20,000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए, ताहम साबिक वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। अगर बीजेपी कहती है कि ये झूठ है तो इसका जवाब दे। क्या इंदिरा गांधी ने लोकसभा में ये नहीं कहा था कि रिपोर्ट को अवाम के सामने जारी करना कौमी मुफाद में नहीं होगा? शहर में जारी कांग्रेस कमेटी के इजलास के दरमियान हैदराबाद में तेलंगाना की मौजूदा पार्टी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान पोस्टर वॉर शुरू हो गई। कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों और तेलंगाना में सरकारी फलाही स्कीमों का मवाजना करने वाले कई पोस्टर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मंजरियाम पर आए, जिसमें कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी रियासतों में अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। मीटिंग के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में करप्ट कांग्रेस मॉडल दुरुस्त बीआरएस मॉडल के पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर्स कांग्रेस के ज़ेरे इंतजाम रियासतों और बीआरएस के ज़ेरे इंतजाम तेलंगाना में सरकारी फायदा उठाने वालों का मवाजना करते हैं। चंद पोस्टरों में कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों जैसे छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान के मुकाबले तेलंगाना में किसानों के लिए मुफ्त बिजली और लाइफ इंश्योरेंस स्कीमों का जिक्र किया गया है। मंदिर के अहाते में नमाज की अदायगी पर पुलिस ने एक खातून और उसकी बेटी को हिरासत में ले लिया। ये वाकया रियासत उत्तर प्रदेश के जिले बरेली के केसरपुर के शिव मंदिर में पेश आया। लोगों ने इस मंजर को अपने फोन्स के कैमरों में कलमबंद करके डीजीपी और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को एक्स पर पोस्ट करके एहतजाज दर्ज करवाया। पुलिस ने मजार शरीफ में रहने वाले और नमाज पढ़ने वाली माँ बेटी को हिरासत में ले लिया है, क्योंकि इल्जाम है कि मजार वाले ने उन्हें नमाज पढ़ने का मशवरा दिया था। गाँव के सरबराह की शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मजहबी जुनून फैलाने का मुकदमा दर्ज किया है। केसरपुर गांव की मखलूद आबादी है। मजहबी जुनूनियत की वजह से यहां दोनों फरीकों के दरमियान कई बार लड़ाइयां भी हो चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक गांव में एक कदीम शिव मंदिर है। बहुत से लोग मंदिर के अहाते में बैठे हुए थे कि इसी दौरान केसरपुर गाँव के जाकिर हुसैन की बीवी सबीना और उनकी बेटी मंदिर के अहाते पहुंच गयी। उन्होंने वहां नमाज पढ़ना शुरू कर दी। इस पर लोगों ने एहतजाज किया और उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन माँ बेटी नमाज पढ़ने पर बजिद है। लोगों ने उनकी नमाज पढ़ते हुए वीडियो बनाई, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो देखने के बाद मुश्तइल हिंदू तंजीमों ने चीफ मिनिस्टर और डीजीपी को ट्वीट करके उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इंस्पेक्टर राजेश कुमार मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने नोहाई गांव, सईदुपुर के मजार के रिहायशी चमन शाह और केसरपुर गांव के जाकिर हुसैन की बीवी सेना और उनकी बेटी को हिरासत में ले लिया है। शिव मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू तंजीमों में बरहमी पाई जाती है। केसरपुर प्रधान प्रेम सिंह ने मजार में रहने वाली मां, बेटी और चमन शाह के खिलाफ मजहबी जुनून फैलाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करवाया। उन्होंने सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। पुलिस ने खातून और उसकी बेटी को केसरपुर के कदीम शिव मंदिर में नमाज अदा करने पर हिरासत में ले लिया है। पुलिस की पूछताछ के दौरान मां बेटी ने बताया कि वो केसरपुर के पड़ोसी गाँव सईदुपुर की मजार के पास नमाज पढ़ने गए थे। वहां पर रहने वाले चमन शाह ने उन्हें केसरपुर के शिव मंदिर में नमाज पढ़ने पर उकसाया। इसके बाद वो वहां से निकलकर सीधी शिव मंदिर गई और नमाज पढ़ने लगी। खवातीन के इंकशाफ के बाद पुलिस ने मजार के पास रहने वाले चमन शाह को भी हिरासत में ले लिया है। चांद की सतह पर उतरने का हिंदुस्तान का ख्वाब 23 अगस्त 2023 को पूरा हुआ। चंद्रयान 3 ने चांद के कुतुब जुनूब की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की और हिंदुस्तान ऐसा करने वाला पहला मुल्क बन गया। लैंडिंग के वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के लिए जनूबी अफ्रीका में थे और जोहान्सबर्ग से ही उन्होंने इसरो के साइंसदानों और हम वतनों से खिताब किया और चांद पर कामयाब लैंडिंग के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। उसी वक्त जब पीएम मोदी खिताब कर रहे थे, चंद्रयान के लिए लॉन्च पैड बनाने वाले मुलाजिमीन अपनी 18 माह की बकाया तनख्वाह के लिए एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज करने वाले मुलाजिमीन का कहना है कि रांची के धरवा में वाक़ हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड HEC के 2800 मुलाजिमीन को गुज़िश्ता 18 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। HEC एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटीग्रेटिंग CPSU है। 810 टन लॉन्च पैड के अलावा HEC ने चंद्रयान के लिए फोल्डिंग प्लेटफॉर्म WEBS स्लाइडिंग डोर भी बनाया है। इसके अलावा HEC इसरो के लिए एक और लॉन्च पैड बना रहा है।
समंदरी तूफान ली कनाडा के शहर नोवा स्कॉटिया से टकराने के बाद अमेरिका के मेरीटाइम कनाडा और न्यू इंग्लैंड में तेज हवाएं चली और तेज बारिश हुई, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। अमेरिकी नेशनल ब्रेकन सेनेटर के मुताबिक पोस्ट ट्रॉपिकल तूफान नोवा स्कॉटिया के दारुल हुकूमत हैलिफैक्स से 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ तकरीबन 215 किलोमीटर मगरिब में लैंडफॉल किया। अमेरिकी मौसमी हुकाम ने बताया कि यह इलाका ईस्ट पोर्ट मेन के कस्बे से तकरीबन 80 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। हुकाम के मुताबिक मेन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और कोस्ट गार्ड के एहलकार 1800 की गैलन डीजल ईंधन को समंदर में उतारने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि ली की वजह से नोवा स्कॉटिया में साहिली सड़कें और कश्तियों में पानी भर गया। बिजली की बंदिश में खलल पड़ा, बहुत से दरख्त उखड़ गए और फेरी सर्विस मुअत्तल हो गई। तूफान ने इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया, जो इस मौसम गर्मा के सैलाब और जंगल की आग से अब भी ठीक हो रहा है। नोवा स्कॉटिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे से हफ्ते को कोई परवाजें तय नहीं है। पुलिस चीफ ब्रायन लिंट ने बताया है कि एक 51 साला मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई जब तेज हवाओं के बायस शेर स्पोर्ट मेन में US हाईवे 1 पर एक बड़ा दरख्त उसकी गाड़ी पर गिर गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।